Hello everyone, welcome to the BioBlades Brilliance. In today's lecture we are going to study about transmission of nerve impulse यानी जो सिग्नल या इम्पल्स जनरेट होता है न्यूरॉन्स में वो एक न्यूरॉन से दूसरे में कैसे ट्रांसमिट होता है. So there are basically two ways in which the impulse or a signal is transmitted from one neuron to other neuron. There are two ways that are across the synapse and across the axon. Today we are going to study about how the signal or impulse is transmitted from one neuron to other neuron via or across the synapse. So if we look at this structure is basically of the first neuron and this structure is basically of the second neuron. We can say this part as a presynaptic neuron and we can say this part as a postsynaptic neuron. Now the presynaptic neuron is basically the axon terminal part जिसको हम synaptic knob भी कहते हैं, and the postsynaptic neuron is basically the dendrite part. In the presynaptic neuron there are basically the channels. Now these channels are basically the calcium ion channels. Now there are basically channels that are known as calcium ion channels. There are the circular structures which are known as synaptic vesicles. Inside the synaptic vesicles, a chemical is filled which is a kind of neurotransmitter, that is acetylcholine. Acetylcholine is a neurotransmitter which is made up of two acids, acetic acid and choline. In the postsynaptic neuron, there is a structure present which is a kind of a channel or a receptors. Now, these receptors are binded on the postsynaptic neuron. Hence, we can also say it as a postsynaptic neuron receptors. Now, let us see how the signal which comes in the presynaptic neuron, how it gets transmitted towards the postsynaptic neurons. So, the process starts from here. Whenever a signal or an impulse, whenever signal या फिर कोई impulse जब एक्सॉन टर्मिनल में आता है या फिर प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में आता है, तो वो आने के बाद यानी सिग्नल या इंपल्स आने के बाद एक रिएक्शन चेन डेवलप होता है, जिस रिएक्शन चैनल की वजह से या रिएक्शन चेन के वजह से कैल्शियम आयन चैनल्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं. अब इन कैल्शियम आयन चैनल्स के ओपन होने की वजह से इनके सराउंडिंग में जितने भी कैल्शियम आयंस होंगे वो सभी कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स हो जाता है अंदर की तरफ. और जब कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स अंदर की तरफ हो जाता है तो ये सिनेप्टिक वेसिकल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये आके अटैच हो जाते हैं ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन लाइक दिस. Once these synaptic vesicles which are filled with neurotransmitters, एक बार ये आकर प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन यानी दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, एक बार ये सिनेप्टिक वेसिकल्स आके प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन्स पे अटैच हो जाते हैं तो वो यहाँ से अपने अंदर का कंटेंट जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स वो इस स्पेस में रिलीज कर देते हैं और ये स्पेस को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट. जब ये सिनेप्टिक वेसिकल्स अपने अंदर के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको रिलीज कर देते हैं इस गैप में जिसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आके बाइंड हो जाते हैं इन रिसेप्टर्स पे. एक बार ये न्यूरोट्रांसमीटर्स या एसिटाइलकोलिन आके इन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो जाते हैं तो इन रिसेप्टर्स पे बाइंड होने के वजह से नेक्स्ट पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में जो भी चैनल्स होते हैं उन चैनल्स के थ्रू आयन का इन्फ्लक्स होता है. आयन का इन्फ्लक्स होने की वजह से नेक्स्ट न्यूरॉन का जो इंपल्स या सिग्नल जनरेशन का प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में चालू हो जाता है. तो यहां पे हुआ क्या है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और एसिटाइलकोलिन इन दिस न्यूरॉन दैट इज प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के वजह से जो सिग्नल या इंपल्स प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में आया था यानी फर्स्ट न्यूरॉन में आया था उसी के वजह से ये सिग्नल या इंपल्स पास ऑन या ट्रांसफर होता है नेक्स्ट न्यूरॉन के पार्ट में जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टसिनेप्टिक न्यूरॉन. सो इन दिस वे a signal or an impulse is
transmitted or carried away from presynaptic or first neuron to the second neuron. Once the signal or impulse is carried out, this acetylcholine which is in the synaptic cleft to erase it out. अब यहाँ पे कैसा होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल या इम्पल्स कंटिन्यूसली फ्लो होते हैं, तो अगर ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया तो साइनेप्स अपने आप को दूसरे साइकिल के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे इन एसिटाइलकोलिन का एक्शन को प्रिवेंट करने के लिए या स्पिट आउट करने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं कोलिनेस्टेरेज एंजाइम। ये कोलिनेस्टेरेज एंजाइम क्या करता है, इस एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करता है दो कंपोनेंट्स में, एसिटिक एसिड प्लस कोलिन। अब ये ब्रेक करना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये जो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे आया है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, वो डायरेक्टली वापस से रीएब्सॉर्ब नहीं हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो इन एसिटाइलकोलिन को वापस से अंदर जाने के लिए सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर यानी रीएब्सॉर्ब होने के लिए इन एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करना जरूरी है इनटू एसिटिक एसिड एंड कोलिन। एक बार जब कोलिनेस्टेरेज एसिटाइलकोलिन को ब्रेक कर देता है एसिटिक एसिड और कोलिन में, तो ये रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में, और प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में एब्सॉर्ब होने के बाद ये वापस से फॉर्म अंदर एंट्री कर लेते हैं इनसाइड द सिनेप्टिक वेसिकल्स। So in this way the transmission of nerve impulse occur from presynaptic neuron to postsynaptic neuron across the synapse. In the next lecture we will be studying about how the nerve impulse transmits from across the axon. So next हम ये पढ़ेंगे कि nerve impulse का जो transmission होता है वो न्यूरॉन के थ्रू ही, न्यूरॉन के अंदर ही अंदर कैसे होता है, यानी through the axon. So starting with this, we all know that the neurons are excitable cells. हम जब कहते हैं कि neurons excitable cells हैं तो इनका मतलब क्या होता है? Excitable cells हम उन cells को कहते हैं जो impulse मिलने से पहले या trigger मिलने से पहले resting state में होते हैं, और जैसे ही उनको impulse मिलता है वो cells excited state में या फिर active state में आ जाते हैं। उन cells को हम excitable cells कहते हैं। नेक्स्ट, सराउंडेड बाय ECF, न्यूरॉन्स का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उनके सराउंडिंग में एक तरीके का फ्लूइड होता है जिसे हम ECF कहते हैं, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत सारे पॉजिटिव आयंस के रिच कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, जैसे सोडियम आयंस हो गए, पोटेशियम आयंस हो गए, एक्सेट्रा। सो वी कैन से दैट द सराउंडिंग ऑफ द न्यूरॉन इज सराउंडेड बाय, or in the surrounding of neuron there is a presence of an extracellular fluid which is rich in sodium and potassium concentration. And जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके ऊपर के जो मेम्ब्रेन होते हैं वो सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं कुछ आयंस के लिए, जैसे सोडियम और पोटेशियम। When we say that the membrane is selectively permeable, इसका मतलब होता है वो एक साइड से दूसरे साइड में किन्हीं आयंस को यानी सिलेक्टेड आयंस का ट्रांसफर करने के लिए परमिएबल होते हैं। वो सभी आयंस को एक साइड से दूसरे साइड में ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। दैट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल। और जो ट्रांसफर होता है वो सोडियम आयन चैनल्स, पोटेशियम आयन चैनल्स या फिर सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप्स के थ्रू होता है। सो लेट्स स्टार्ट कि ये अगर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है तो ये डेंड्राइट्स है, ये साइटोन है और ये एक्सॉन है। जब भी कोई भी डेंड्राइट इम्पल्स या सिग्नल रिसीव करते हैं तो सभी जगहों से जो इम्पल्स या सिग्नल होता है वो आता है आपके साइटोन में। अब हर एक जगह से जब सिग्नल आएगा तो हर एक जगह का सिग्नल एक तरीके का एडिटिव इफेक्ट या समेटिव इफेक्ट डालेगा तुम्हारा साइटोन में, और वो समेटिव इफेक्ट या एडिटिव इफेक्ट ऑफ इम्पल्स और सिग्नल ट्रांसफर होता है साइटोन से एक्सॉन में, और यहाँ पे वो एक तरीके का एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? रैपिड चेंज इन दी मेम्ब्रेन के जो अक्रॉस में आयंस का जो रैपिड एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से बोलते हैं ना एक पीक आता है चेंज में आयंस का, उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक के यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो न्यूरॉन को एक सिग्नल मिलता है कि अब मुझे एक्साइटेड स्टेट में आना है, और अब मुझे एक्टिव स्टेट में आने की वजह से अब मेरा मेम्ब्रेन्स का जो चेंज होना चालू हो जाएगा आयंस का।
सो जब भी कोई भी न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है, whenever a neuron is in resting state of neuron is also known as polarized state. We can see outer side is electropositive and inner side is electronegative. जब भी कोई भी न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है तो हम रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूरॉन को पोलराइज स्टेट भी कहते हैं. सो इन पोलराइज स्टेट इनर पार्ट ऑफ एक्सॉन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड आउटर पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. अब ये क्यों होता है? बिकॉज आउटर साइड ECF होता है. ECF में पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनर पार्ट ऑफ एक्सॉन. अब एक्सॉन के अंदर भी पॉजिटिव आयंस होते हैं बट कंसिडरेबली अंदर के तरफ पॉजिटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है. इस वजह से एक्सॉन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और एक्सॉन्स के बाहर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. अब प्रोसेस पढ़ने से पहले कुछ ऐसे टर्म्स हम लोग जो यूज करेंगे उसके बारे में पढ़ लेते हैं. P विल रिप्रेजेंट पोलराइज स्टेट, यानी तुम्हारा न्यूरॉन जो है वो रेस्टिंग स्टेट में है. DP मीन्स डीपोलराइज स्टेट, यानी न्यूरॉन सब तुम्हारा एक्टिव स्टेट में है. RP मीन्स रीपोलराइज स्टेट. रीपोलराइज स्टेट का मतलब तुम्हारा न्यूरॉन जो एक्साइटेड स्टेट में गया था अब वो ट्राई कर रहा है वापस से अपने रेस्टिंग कंडीशन में आने के लिए. सो या लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. नाउ we will consider here only this part of axon. उसी में हम समझेंगे कि एक पार्ट ऑफ एक्सॉन से दूसरे में, दूसरे पार्ट्स ऑफ एक्सॉन से तीसरे में कैसे इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है. अब जब हम कहते हैं सिग्नल या इंपल्स, तो सिग्नल या इंपल्स एग्जैक्टली होता क्या है? सिग्नल या इंपल्स को हम ये कह सकते हैं कोई भी चेंज इन दी आयंस अक्रॉस दी मेम्ब्रेन जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, दूसरे पार्ट से तीसरे पार्ट में ट्रांसफर होता है, उसे हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स और ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल. नाउ जब भी यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जब भी यहाँ पे यानी एक्सॉन हिलॉक पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो जो भी न्यूरॉन के पार्ट्स हैं यहाँ पे तुम्हारा इनफ्लक्स ऑफ Na+ आयंस चालू हो जाएगा. इनफ्लक्स ऑफ Na आयन प्लस का मतलब यहां से Na आयन प्लस का एंट्री चालू हो जाएगा. अब Na+ आयंस के एंट्री होने के वजह से ये पार्ट का जो है ये पार्ट का जो स्टेट है इलेक्ट्रोनेगेटिव और पॉजिटिव आयंस अंदर आते हैं तो अंदर का पार्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है और बाहर के पार्ट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं. यानी तो चार्ज होता है क्रॉस दी मेम्ब्रेन, ये पूरे तरीके से चेंज हो जाता है. अब जब ये स्टेट में होता है तो इसे हम कहते हैं ये पोलराइज स्टेट में है. बट व्हेन द चार्ज ऑफ द मेम्ब्रेन, व्हेन द चार्ज अक्रॉस द मेम्ब्रेन चेंजेस, दिस इज नोन एज डीपोलराइज स्टेट. यानी अब ये जो पार्ट है वो तुम्हारा एक्टिव स्टेट में आ गया है. डीपोलराइज स्टेट में आने के बाद ये पार्ट क्या करेगा? वापस से अपने रेस्टिंग स्टेट में आने के लिए, नहीं वापस अपने एक्टिव स्टेट में आने के लिए, और जो चेंजेस यहां हुआ है वही चेंजेस को ये पार्ट में ट्रांसफर करने के लिए. तो उसके लिए ये जो डीपोलराइज स्टेट या रीपोलराइज स्टेट में कैसे आएगा? यहाँ पे होता है एक तरीके का सोडियम एक्सचेंज, सोडियम पोटेशियम पंप होता है. सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? फॉर एवरी 3 Na+ आयंस जो अंदर गए हैं, जो Na+ आयंस अंदर गए हैं, सोडियम एक्सचेंज पंप के थ्रू हर एक 3 सोडियम आयंस बाहर आएंगे और पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे. अब यहाँ पे जो सोडियम आयंस अंदर आए थे वो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू बाहर जाएंगे और पोटेशियम आयंस बाहर से अंदर आएंगे, जिसके वजह से ये जो स्टेट होगा वापस से तुम्हारा अंदर का इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेज हो जाएगा और सोडियम आयंस बाहर आने की वजह से वापस से तुम्हारा ये पॉजिटिव स्टेट हो जाएगा और ये डीपोलराइज से वापस से पोलराइज स्टेट हो जाएगा. यही प्रोसेस जो होता है पोलराइज से डीपोलराइज में जाना, डीपोलराइज से वापस से रीपोलराइज स्टेट में आना, हर एक पार्ट ऑफ एक्सॉन में यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है. अब जो चेंजेस यहाँ पे हुआ था वही चेंजेस तुम्हारा ये मान लो फर्स्ट पार्ट ऑफ है, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट. जो चेंजेस फर्स्ट पार्ट में हुआ था वही चेंजेस अब सेकेंड पार्ट में होने वाला है. सेकेंड पार्ट में कैसे? अब यहाँ से जैसे ही जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है ये पार्ट से जैसे ये पार्ट में जाएगा, यहां से वापस से सोडियम आयंस का ट्रांसफर चालू हो जाएगा अंदर की तरफ, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस. तो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होने की वजह से ये पार्ट में पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्ट में पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर के पार्ट में नेगेटिव, बाहर के पार्ट में नेगेटिव. यहाँ पे अब
चार्ज अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स जो रहते हैं वो चेंज हो गए हैं, तो अब ये आ गया है तुम्हारा डीपोलराइज स्टेट में। अब ये क्या कोशिश करेगा डीपोलराइज स्टेट से वापस से रीपोलराइज स्टेट में जाने के लिए। तो वो कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पे अब क्या होगा, जो भी जितने भी Na आयंस अंदर आए हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स के थ्रू 3 सोडियम आयंस बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे। अब 3 सोडियम आयंस बाहर जाने की वजह से यहाँ पे वापस से इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा अंदर के स्टेट में, और बाहर के स्टेट में वापस से इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। सेम प्रोसेस तुम्हारा रिपीट होगा ये थर्ड पार्ट ऑफ एक्सॉन के लिए। तो यहाँ पे होता क्या है, हर एक पार्ट ऑफ एक्सॉन पहले होता है पोलराइज स्टेट में, पोलराइज स्टेट से वापस से जाता है डीपोलराइज स्टेट में, डीपोलराइज स्टेट से वापस से जाता है रीपोलराइज स्टेट में, यानी वापस से वो पोलराइज स्टेट में आता है। तो इसके वजह से होता क्या है, जो चार्ज है जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ चार्ज या फिर सिग्नल या इंपल्स, वो एक पार्ट से दूसरे में, दूसरे पार्ट से तीसरे में ट्रांसफर होता है, और इसी चीज को हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस द एक्सॉन। बहुत से 12th के बच्चों को ये कंसेप्ट बहुत हार्ड लगता है, बट अगर आपको ये 3 कंसेप्ट्स क्लियर है कि पोलराइज स्टेट क्या होता है, डीपोलराइज स्टेट क्या होता है और रीपोलराइज स्टेट क्या होता है, देन एवरीथिंग विल बी वेरी मच इजी। इतना ध्यान रखना है कि जब भी नर्व इंपल्स या सिग्नल एक पार्ट से दूसरे में, दूसरे पार्ट में तीसरे में ट्रांसफर होता है, तो हमको ये समझना है कि क्या एक्चुअल में ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर जो होता है वो इंपल्स ट्रांसफर होता है। कैसे? एक पार्ट जो पोलराइज स्टेट में रहता है वापस से डीपोलराइज में आता है, डीपोलराइज से वापस से रीपोलराइज में आता है। जब ये पार्ट में वो प्रोसेस खत्म हो जाता है तो शिफ्ट होता है सेकंड में, सेकंड से शिफ्ट होता है थर्ड में। तो शिफ्ट होने के बाद हमको यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि एवरी पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट। जब भी आयंस का एक्सचेंज होता है, यानी बाहर से जब पॉजिटिव आयंस अंदर आते हैं तो अंदर का एनवायरनमेंट मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है और बाहर का एनवायरनमेंट मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाता है। जब न्यूरॉन अपने कंडीशन को वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए कोशिश करते हैं, तो सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू अंदर के तरफ जो पॉजिटिव आयंस आए हैं वो वापस से बाहर की तरफ जाएंगे, और अंदर का एनवायरनमेंट वापस से इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बाहर का एनवायरनमेंट वापस से इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। So in this way a impulse travels from one part to second part to third part of neuron. So this was all about the transmission of nerve impulse. If you had understood all the content, please do watch all the parts of the transmission of nerve impulse through synapse and axon. And if you have any doubt, please do comment on the channel and like and share and subscribe my channel for the more upcoming videos. Thank you.